Welcome back. Let's start this 6 p.m. edition of This is Exclusive, focusing entirely on Cyclone Biparjoy and its likely landfall anytime now between 6 p.m. and 8 p.m. This is going to happen near the Jakau port in Gujarat's Coast district, and even as the administration has taken all precautionary measures, all the agencies working in tandem, having evacuated over 100,000 people from the entire stretch of the Gujarat Coast from Dwarka at the tip of Gulf of Kutch to Jakau port, where exactly this cyclone is going to hit. And this has been a long life cyclone in the sense that it began its life with a depression in the eastern central part of Arabian Sea on the 6th of June, and since then it has been gaining in strength. Now it is located at about 60 kilometers from the coastline and moving at a speed of over 8 kilometers an hour, less than 60 now, in fact about 50 kilometers from the coast, and this is going to take about 3-4 hours, which means it should be landing or making landfall between 8 and 10 p.m. and then the process of landfall and subsequent weakening of the cyclone happens over the next 4 to 5 hours, which means past midnight, the worst of the impact of Cyclone Biparjoy on the Gujarat coast, particularly the Gulf of Kutch and the coastline along that, should be over. We are getting those live pictures from across the affected areas, affected geography, from Dwarka to Rajkot to Mandvi to Jakau to Kandla, and of course other coastal areas including Mumbai and Goa. These pictures clearly show that the cyclone is very close to making a landfall. This should happen around 8 p.m. and anticipating the situation, the administration has been in top gear, both the state government and its agencies, and the center chipping in with its own set of disaster management drills. I'm told Priyanka is joining us live, so let's go to her first. ये जो तार देख रहे हैं आप बिजली का, ये टूट चुका है। बिजली का तार देखिए पेड़ों के बगल में, अभिषेक ये दिखाइए, ये जो तार है बिजली का, ये टूट करके नीचे गिरा हुआ है। हालांकि इस पूरे इलाके में बिजली की सेवा जो है बाधित कर दी गई है। आपूर्ति ठप कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं यहाँ पर, उसको देखते हुए तस्वीर अभी और खराब होने वाली, क्योंकि मौसम जैसे जैसे खराब हो रहा है वैसे वैसे स्थिति यहाँ पर और तकलीफदेह हो रही है। सामने देखिए, जो पेड़ देख रहा है मेरे सामने, वो सारे पेड़ झुक गए हैं। ये सारे पेड़ खड़े थे, ये सारे पेड़ झुक गए हैं, उसमें से कुछ गिर भी गए हैं। ये हाल शहर के बीचों बीच का है, जो पौष इलाकों में आता है। हालांकि द्वारकाधीश के पूरे इलाके में हूँ मैं, जहाँ पे जैसे ही बाहर निकले हम लोगों को लगातार यहाँ पर जो पेड़ है वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार बच के यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि खुद को सुरक्षित रखते हुए दर्शकों तक हर तस्वीर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी सुचारता है। और ये देखिए, जो टीम देख रहे हैं आप, ये दरअसल देवदूत है, क्योंकि इनको तैनात किया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि अगर कोई हादसा होता है तो उनको मौके पर भेजा जा सके। ये ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। आप लोग बताइए भाई साहब, जिस तरीके से मौसम बना हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे आप लोग? बोलिए। द्वारका से, हाँ, ये सरकारी हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का है, मेन रोड है, निकला है, जो पूरे दिन में 80 पेड़ की फरियाद आ गई है। हाँ। मकान पे गिरा है, बहुत किया है। हाँ। अभी बाकी है, थोड़ा हवा रुक जाए, बारिश का काम हो सकता है। अभी तो हवा बहुत तेज है, बहुत तेज। ऐसे में काम कर पा रहे हैं आप लोग? 90-95 की गति से। ये बिजली के तार गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पर, ये चुनौती है आप लोगों के लिए? काट दिया हमारे फायर ने, एक से काटा है। हाँ। और ये पेड़ अभी क्या करेंगे? इसको आप लोग हटा देंगे यहाँ से? हटा दिया, ये रास्ता कर दिया, मेन सरकारी हॉस्पिटल है ना, उसको रास्ता कर दिया, मेन गेट से गया। तो देखिए, यहाँ पर लोग हैं जो मदद के लिए इनको खास तौर पर यहाँ पर लगाए गए। देखिए, जो वैन देख रहे हैं आप, नगर पालिका Anamika there reporting from Dwarka in Gujarat, bringing us those pictures. Those pictures really give you an idea of the intensity of the cyclone and
the wind speeds and the possibility of destruction. Advisories in place. It's a category 3 cyclone and the danger sign flying at 10, which means the maximum it can be, and the people have been evacuated to safety, those who could be in the eye of the storm as it makes the landfall. Let's go to Priyanka now. She's there in Mandvi in Kutch. Priyanka, you seem to be at a place which is close to the possible spot of landfall. Please tell us how's the scene like there on the ground. Show to the viewers what's really happening in Mandvi and the precautions that are there in place. We can see some people behind you. Have all not been evacuated to safety? And yes, if yes, who are those people? Are they from the administration monitoring the situation on the ground? Well, Abhishek, as and when the cyclonic storm in fact is approaching the Gujarat coast, we are experiencing a lot of wind speed increasing, the gusting wind speed and the gale wind speed also increasing by the minute. And of course, we are seeing pockets of heavy rainfall that we are experiencing on the ground as well. As far as the precautions are concerned, as we had been talking about, Abhishek, the precautions have been kept in place by the authorities on the ground in Kutch as well as other 6 districts that are going to be in the cone of uncertainty as far as the IMD predictions are concerned. And that is why the precautions have been taken place and the evacuation, as you asked, have already been done. But as of now, we are at the Mandvi port. We are near the Mandvi port, where in fact we have seen several of the people that have come out and there are authorities that are carrying out this patrolling to make sure that nobody really goes out to venture into the near the seas as well. So that is why we are looking at the barricading as well that has been done at various places, at least at a radius of 3 kilometers near the sea, that the barricading has also been done. But of course, we are being allowed as a media personnel to several particular places. But more than that, the movement for the media personnel now has also been restricted, keeping in mind the cyclonic effects that we will be also experiencing on the ground. We are already experiencing on the ground, Abhishek, as far as the wind speed is also concerned. There are times that it is difficult to even stand in one particular place because of the wind speed and the accelerating wind speed as well. So of course, this is the district, as we have been reporting from here as well. This is the district that is going to see the massive impact of this particular cyclonic storm as and when the landfall really takes place. As it was in fact expected through the day since morning. We have been keeping a very, very close track. In fact, we have been reporting on the ground since morning, and we have been seeing the change in the weather, the change in the atmosphere, the change in the wind speed, the change in the rains as well that has taken place, and that really gives us an idea as to what to really expect as and when the cyclonic storm really approaches the Gujarat coastline and makes a landfall here, and leads to this kind of after effects as well that the authorities have said that they are prepared for, because they have said that the evacuation, as you asked, has already been done. More than around 1 lakh people from the low-lying areas of 7 districts at least that have been evacuated from the villages. They had to leave behind their kacha houses as well, their livelihood, all of that has been, and now they have been evacuated to shelter homes, including that of the PHCs or the primary schools that have been set up as shelter homes in the particular areas as well. Now specifically about Kutch, let's speak about the Jakhau port as well, and you would know about the topography of this particular district as well, Abhishek, as near the Jakhau port as well, one of the massive places that will be impacted. अपना बैलेंस खो रहा है, जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है, और शायद इसीलिए जो मुझे यहाँ के जो वर्कर्स थे, जो लोग थे, वो मुझे किनारे कर रहे थे कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसकी एक डाल वो गिर भी गई थी और हादसा कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में खुद को सेफ रखते हुए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि ऐसे में बोलना और खुद को बैलेंस बना करके खड़े रखना दोनों बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ये देखिए, जिस तरीके से आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये इस हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा गया है किसी भी हादसे को लेकर के। अगर कोई हादसा होता है तो उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन अजीब बात देखिए कि इसी हॉस्पिटल की बाउंड्री पहले गिर जाती है पेड़ गिरने के साथ ही। ये भी बहुत डिफरेंट चीज़ है यहाँ पर। खैर, द्वारिका में अगर बात की जाए तो सुचरता ये भी यहाँ पर कहा जाता है कि द्वारिकाधीश रक्षा करते हैं इस पूरे इलाके की, द्वारिका की पूरे। लेकिन आज सचमुच उनके शरण में ही सब कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिजली आपूर्ति ठप है, हवाओं के चलने का आसार जो है वो अभी बता रहे थे लोग कि 120 है,
लेकिन अभी कुछ देर के बाद हवा और तेज बढ़ेगी। ये आकलन है IMD का कि जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे हवा और तेज बढ़ेगी, और जैसे जैसे हवा और तेज बढ़ेगी वैसे वैसे तबाही का मंजर कुछ और होगा। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं टीवी पर, All right, live pictures coming in from the ground in Gujarat, from Dwarka to Kutch. We had Priyanka earlier and Anamika Singh now, and in the pictures we can see the tough situation there, the difficult conditions in which our teams are reporting and bringing to you those pictures of geography affected by Cyclone Biparjoy, which has intensified over the last few days and now is going to make landfall in a few hours from now. In the pictures you also see administration on the move. Let's go back to Priyanka. Priyanka, I had a question for you. We discussed the best case scenario in which the landfall happens in a couple of hours from now, and then over the next few hours the cyclone loses its strength and dissipates. But despite all the precautions taken care of by the administration, by the government there, you think what's the worst case scenario if you have spoken to those people on the ground? Gujarat is no stranger to cyclones, and there have been earlier instances of a lot of destruction. What's the worst case scenario? We hope it's limited. It's going to be limited to property and whatever comes in the way of the cyclone as it hits the landmass. Well, that's the hope, Abhishek. As you pointed out, the best case scenario by the government was pointed out was that it will only be a loss to some level of livelihood, loss to some level of property as well. इनफैक्ट जब हम अथॉरिटीज़ से बात भी कर रहे थे तो उनसे भी हमें पता चल रहा था कि किस तरह से वो पूरी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं इवैक्यूएशन को लेके। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वो उनको ध्यान में रखते हुए वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, जायज़ है, होगा ही, क्योंकि कई सारे जो मछुआरों की अगर हम बात करें, क्योंकि जखाऊ पोर्ट के अथॉरिटीज से भी हम बात कर पा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि पहला उनका प्रायोरिटी ये है कि लोगों की जान ना जाए, लोगों की जान बचाई जा सके, और उनकी जो नाव वगैरह जो लाइन ऑफ डेंजर की अगर हम बात करते हैं उसमें आती है, तो उसको किस तरह से बाद में रिलीफ का काम किस तरह से किया जा सकता है, कंपेंसेशन का काम किस तरह से किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से। ये बात उन्होंने कही है। और हालांकि अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपनी प्रिपरेशन रखी हुई है, ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से अगर कोई भी अगर लॉस ऑफ लाइफ होता है और अगर इमीडिएट अगर कुछ एक्शन लेना हो, क्योंकि लैंडफॉल जैसे ही हिट करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़रूर हो रहा है डायरेक्शन को लेके पूरे साइक्लोनिक स्टॉर्म को, और पूरा जो टाइमलाइन है उसका साइक्लोनिक स्टॉर्म का, उसको भी लेके थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ज़रूर हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से पहले प्रेडिक्शंस किए गए थे, IMD की तरफ से पहले प्रेडिक्शन किए गए थे कि 4 से 6 बजे के तकरीबन करीब ये लैंडफॉल होगा साइक्लोनिक स्टॉर्म का, पर इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिले ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, रिव्यू मीटिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल खुद रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ में वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड पे उनकी प्रिपरेशन है, कि अगर कोई भी अगर कुछ भी और भी ज़्यादा अगर कुछ जानहानि होती है तो उसको किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, किस तरह से रिलीफ का काम किया जाएगा। क्योंकि ये एक बात ज़रूर एक नोट करने जैसी है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जब लैंडफॉल करेगा तब उसकी जो विंड स्पीड है, विंड की गति है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। 155 किलोमीटर पर आवर से लेके 55 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। उसके बाद जो विंड से ज़्यादा इफेक्ट्स होंगे उसके वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, पर उसके अलावा जो फ्लडिंग हो सकती है, जो हैवी रेनफॉल हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा रही है अथॉरिटीज़ की तरफ से। वो कह रहे हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए पूरी प्रिपरेशन की जा रही है, और उसी के लिए सारी जो रिव्यू मीटिंग्स है वो भी की जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो करंट्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मांडवी पोर्ट के पास में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इवैक्यूएशन भी किया गया था, किस तरह से यहाँ पे अवेयरनेस भी की गई थी। तो प्रिपरेशन गवर्नमेंट की जरूर है और ध्यान में रखते हुए। Yeah,
We can see the storm surge, Priyanka, and the after effects of the cyclone remain for a few days. We hope that the damage is the barest minimum and limited to coastal areas. Stay with us as we continue our rolling coverage of the landfall of Cyclone Biparjoy, which has been stirring in the Arabian Sea for the last almost 8 days. There's a ground report coming in from Dwarka filed by Anamika Singh. Let's have a look at it. यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही है, क्योंकि आकलन ये है कि ये हवाओं का जो रफ्तार है अब वो 120 से 125 प्रति घंटे किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। और ऐसे में बहुत तेज बारिश भी हो रही है। इस बारिश ने और मुश्किलें बढ़ा दी यहाँ पर, और शायद यही वजह है कि अब यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रही है। इस बीच जो तस्वीर सामने की मैं दिखा दूँ आपको कि अब जो तबाही का मंजर होगा अब वो जरूर देखने वाला होगा, क्योंकि ये देखिए कि जो पेड़ है, ये देखिए अब ये पेड़ किसी भी सेकंड में गिर सकता है। मेरे ठीक पीछे ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, और ये पेड़ लगातार हवा के दबाव के चलते अब लग रहा है कि जैसे गिर जाएगा। ठीक वैसे ही कुछ जो बिजली के पोल है, बाकी इलाके हम देख रहे हैं, कुछ मंदिरों में झंडे लगे थे वो गिर गए। इसके अलावा जो होटल्स के ऊपर जो टीन शेड लगे थे वो गिर गए। तो अब जिस तरीके से हवाएं चल रही, जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसमें हमें खुद को भी संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे ठीक सामने समंदर है जो उफान पर है, जिसकी तस्वीर देख करके शायद डर लगे आज पूरी दुनिया को कि समुद्र का इतना विकराल रूप कैसे हो सकता है। और ऐसे में बहुत तेज हवाओं के साथ साथ जोरों की बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है। यानी कि ये अंदेशा, ये आहट, ये दस्तक है उस आफत की, उस मुसीबत की, उस बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की, जिसको लेकर के अब समय बहुत कम बचा हुआ है। 4 से 5 का समय दिया गया था, लेकिन अब 5 बज चुके हैं। यानी कि अब खतरा किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है गुजरात के कच्छ के उस इलाके में जहाँ पे टकराना है। उसके बाद से स्थिति क्या होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो ये द्वारिका है, लेकिन जो कच्छ से जैसी तस्वीर टकराएगी बिल्कुल उसके बाद से हालात ज़्यादा खराब होंगे। हालांकि मौसम अभी यहाँ पर खराब है। आपको आसमान दिखा रही हूँ मैं, आसमान में आपको काले काले बादल दिखाई दे रहे होंगे। सुबह से यहाँ पर मौसम साफ नहीं हो पाया है, दिन में ही रात जैसा नज़ारा लगता है देखने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और वैसे तो कच्छ में जो अंधेरा बहुत देर से होता है, 8 बजे होता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 बजे के बाद से ही अंधेरा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवाओं के दबाव के साथ साथ बहुत हैवी रेन शुरू हो गई है, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। और शायद यही वजह है कि अब ये मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अभिषेक, मैं आपसे कहूँगी क्या आप पीछे की तरफ चलिए, अभिषेक आप पीछे की तरफ चलिए, मुझे आगे आने दीजिए। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, बिल्कुल अब यहाँ पर मौसम ज़्यादा खराब हो गया है। हैवी रेन के साथ साथ अगर बात की जाए तो बहुत तेज हवा हो चली है अब। और ऐसे में अंदाजा ये लगाइए आप कि जब तूफान टकराएगा गुजरात के कच्छ से तो तस्वीर किस तरीके की होगी। बहुत तेज आंधी है, और ये सक्षम है अपने आप में पेड़ को उखाड़ने के लिए, किसी भी नुकसान को करने के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, चाहे वो झंडे दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे पेड़ दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे बाकी अन्य चीजें दिखाई दे रही हो आपको, उस सब पर बहुत भारी खतरा जो है मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। और इसी वजह से हम ये लगातार आगाह कर रहे हैं, रिपब्लिक देख रहे हैं दर्शकों को कि वो अपने घरों में ही रहे, हमारी चेतावनी को समझे। और ये भी देखिए कि हालात किस तरीके के हो चले हैं यहाँ पर, जहाँ पर समझ पाना मुश्किल है कि आपके पास विकल्प क्या होंगे। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी अभिषेक आप अपने आप को सेव करिए, पीछे की ओर चलिए, क्योंकि मैं खुद हवा के प्रेशर से पीछे की ओर जा रही हूँ। ऐसे में मुझे आगे आना है, तो आप पीछे की ओर चलिए। तो देखिए जो तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल आप, यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चला है। समुद्र को मैं सामने देखती हूँ तो भयावह तस्वीर है यहाँ की। देखिए अब यहाँ पे खड़े हो पाना, क्योंकि खड़े होना किसी हादसे को न्योता देने के जैसा है। और हमें जिम्मेदारी पता है कि हमें खुद भी सेफ रखना है खुद को, और दर्शकों तक तस्वीर भी पहुँचानी हर एक यहाँ से। और इसीलिए हम खुद भी बैठ गए। मैंने कैमरा पर्सन से भी कहा है कि वो बैठ जाए, क्योंकि कैमरा है, मशीन है, टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा हमने उनको भी कह दिया कि वो भी बैठ जाए, क्योंकि इस हवा को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीर यहाँ की बहुत भयावह हो चली है, क्योंकि जो हवा का दबाव है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अब इस हवा का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हवा कितनी तेज़ होगी। ये मेरे लिए अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर अंदाज़ा लग पा रहा है कि इस
जिसके चलते जो नुकसान होगा, जो तबाही होगी, उसको आंक पाना अब बहुत आगे की बात निकल चुकी है। हालांकि आकलन IMD की ओर से पहले ही किया गया था कि जो हवा की रफ्तार होगी वो काफी होगी बर्बादी के लिए, तबाही के लिए, लेकिन हम जो महसूस कर पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर रह करके, तमाम पेड़ और बिजली के पोल, इनको बहुत नुकसान होने वाला है। हालांकि इस पूरे इलाके में बिजली पहले ही काट दी गई है, बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है और ठप करने के साथ साथ ये एहतियात के तौर पर कहा गया लोगों से कि वो ना रहे इस होटल में। और देखिए जो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बाकी जो होटल के स्टाफ है वो और जिस तरीके से बाकी लोग जो है होटल के स्टाफ वगैरह है वो भी छिप करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। और हमारे लिए भी यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी पता है कि जो लोग रिपब्लिक देख रहे हैं वो ये जाने और ये समझे कि हालात किस तरीके के हैं गुजरात में, खास तौर पर द्वारिका में। और ऐसे में तस्वीरों को देख करके वो चेतावनी के तौर पर ले और खुद भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। Back-to-back update on India's biggest cyclone Biparjoy. Stay tuned for Republic TV. These are the images which shows you the reality of what really happened in the city of Bucha. What you see right now on your screens is the reality of this war where thousands and thousands of Ukrainians have lost their lives. We are standing in the premise of a church right in the middle of Bucha. ये जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं ये विश्व के सबसे बड़ा एयरबस हुआ करता था एक टाइम पर, और आज आप जो देख रहे हैं इसका कुछ नहीं बचा. You have to leave from here. आज जब अपने उन शहीदों को याद करते हैं तो उसके साथ साथ जवानों की भी बात करना जरूरी है जो अभी भी ग्राउंड पर तैनात है। मैं चाहूंगी एक बार माँ भारती को याद करके एक नारा दे दे जो लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। एक बार देशमुख साहब यहाँ आपातकाल लगाए, देशमुख साहब यहाँ घोषित आपातकाल है। 1000 एडिटर मुझे पकड़ रहे, ये देखिए मुझे पकड़ रहे। देशमुख साहब मेरा खून निकल रहा है, आप देख रहे हैं। देशमुख साहब यहाँ घोषित आपातकाल है, आप पत्रकारों को जेल में डालेंगे, मुझे पकड़ रहे हैं। 1000 रिपब्लिक आप ऐसे पकड़ेंगे मुझे, मेरे मुंह से खून आ रहा है, ये देखिए। सिद्धार्थ 8 तारीख को हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट हुआ था, रिपब्लिक पूछ रहा आपसे। सिद्धार्थ मैं पूछ रहा हूँ 8 तारीख को हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट हुआ था हार्ड ड्राइव से, आपने बताया है क्या था डेटा? 8 हार्ड ड्राइव का डेटा डिलीट हुआ था या नहीं? Investigation reached. So what is the update? Where is the station master, sir? Has he been questioned? What went wrong, sir? Who is to be held responsible? The victims' families are seeking answers, sir. So how far has the investigation reached? So you'll have to answer, sir. Men, women, they are marching towards the road. Though some clashes are also witnessed here at the Sheikhpura road. See the tear smoke shells being used by the Jammu and Kashmir police. Now we can see also that the protesters are not crossing the line.
Waze, why have you arrested him, sir? The Alibag police has arrested him under section 306 and 34 of... Because it was a case, I believe, that was closed by the police itself. Yeah, the same police and same court has opened it. Sir, No, I'm not. I'm following. I'm doing my job. 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 They're trying to stop us from reporting. As the Biparjoy cyclone has hit out in Gujarat, we are reporting live from Mumbai at the iconic Gateway of India. I'm giving you the live visuals out here from Gateway of India. You see the high tides and the wind is blowing at a very high speed. As you see, the tides are on peak, and in fact today morning it recorded 4.1 meter of high tide. In fact, IMD has already said that there will be no impact of Biparjoy in Mumbai, but yes, precautionary measures has been taken place. You see the visuals out here from Gateway of India, and heavy security is being deployed, and in fact we are giving you back-to-back update on the massive cyclone Biparjoy. Stay tuned to Republic TV. The top-ranked Amity BTech attracts some of the most brilliant students of India, with alumni working in top companies around the world and earning over 2 crores rupees per annum. To apply, visit amity.edu. Mr. Charles, please. Mr. Charles, what lies ahead? Mr. Charles, what's lies ahead for you now? Mr. Charles, are you really think France will be safe for you? सर एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, बर्ताव कर रहे, क्या इसका कोई एक्शन लिया जाएगा? सर कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भूपेंद्र जी कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? Person is this gentleman who has entered my house illegally. भारत के लोगों की जीत है। अंदर लालू जी, आपके शहाबुद्दीन से क्या रिश्ते हैं? अरे तुम बराबर यही सवाल पूछते हो। शहाबुद्दीन हमारे पार्टी में थे, जेल में है। बातें होती हैं जेल में? कैसे बात होगी जेल से? टेप चलाते तुम्हारे पास होगा टेप? हाँ, टेप है, वो चलाया भी है। चलाते रहो, हरिगा भजन गाते रहो। There you can see Lalu Prasad Yadav losing his cool with reporters, saying that you have absolutely no stature to ask him questions. Mr. Malia, barrack number 12 jail conditions are ready according to Team India. Is that not fine according to the jail? Consistently been asking you only one question. Mr. Malia, why did you escape in 2015? Why did you walk out? Why did you rush out of India? Mr. Malia, why the question is bothering you when I'm not getting a single answer? Just answer one question, sir.
try and come back once again. Here, sir. Sir, this is the back entry. This is the back entrance of Mr. Chidambaram. Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. He's been arrested on the screen. That's Mr. Chidambaram. Do you have to say? These are the images which shows you the reality of what really happened in the city of Bucha. What you see right now on your screens is the reality of this war where thousands and thousands of Ukrainians have lost their lives. We are standing in the premise of a church right in the middle of Bucha. ये जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये विश्व के सबसे बड़ा एयरबस हुआ करता था एक टाइम पर, और आज आप जो देख रहे हैं इसका कुछ नहीं बचा. You have to leave from here. जब अपने उन शहीदों को याद करते हैं तो उसके साथ साथ जवानों की भी बात करना जरूरी है जो अभी भी ग्राउंड पर तैनात है. मैं चाहूंगी एक बार माँ भारती को याद करके एक नारा दे दे जो लोगों के दिलों तक पहुंचेगा. एक बार साहब यहाँ आपातकाल लगाए. देशमुख साहब यहाँ घोषित आपातकाल है. 1000 एडिटर मुझे पकड़ रहे. ये देखिए मुझे पकड़ रहे. देशमुख All right, time coming when Cyclone Biparjoy is going to make a landfall along the coast of Gujarat. In a couple of hours from now, the cyclone has been intensifying but slowed down in its speed of movement, and that's why against the expected time of anything between 4 to 6 p.m. now the cyclone is expected to hit the landmass between the ports of Mandvi and Jakau in Gujarat in the Gulf of Kutch. All right, let's go to Priyanka Sharma. She's there in Mandvi. And let's see the live pictures coming in of the cyclone and its impact along the coast of Gujarat. ये सारी चीजें जरूर हमें ग्राउंड पे भी देखने को मिल रही हैं कि जो हवा की रफ्तार की वजह से ये सारे इफेक्ट्स जरूर हो रहे हैं. इस वक्त हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बट ऑफ कोर्स इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर जैसा कि आपने भी बताया कि विंड की स्पीड और भी बढ़ेगी. जाहिर सी बात है क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो और भी ज्यादा नजदीक आएगा गुजरात कोस्ट के, तो और भी ज्यादा जो विंड की रफ्तार है बढ़ेगी और स्टॉर्म के इफेक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हवा की रफ्तार है ज़रूर बढ़ेगी. और हमें बताया जा रहा था कि किस तरह से जो गस्टिंग विंड है उसी का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा होगा, क्योंकि जो गस्टिंग विंड है वो एकदम से जो गस्ट्स में आती है वो 165 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आएगी. और इसीलिए IMD के प्रिडिक्शंस के हिसाब से और गवर्नमेंट के प्रिपरेशंस के हिसाब से ये पूरे प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि जिससे कोई भी अगर बाहर आएगा तो उनका भी खड़ा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उसका इफेक्ट होगा ग्राउंड पे भी, और किस तरह से गाड़ियों का, प्रॉपर्टीज़ का. जैसे हम देख रहे हैं कि कई सारे जो होल्डिंग्स हैं वो भी गिरे हुए थे हर जगह, और जो पेड़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, और काफ़ी सारी जगह पे हमने देखा कि पेड़ भी कई सारे गिर गए थे. तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी तस्वीरें ज़रूर हमें देखने को मिल रही हैं. इनफैक्ट हमारे खुद का अनुभव, हम पूरे मांडवी में इस वक्त घूम चुके हैं. पूरा जो सलाया गांव है वहां से लेके बाकी दूसरे जो गांव हैं
जहां से उनको इवैक्यूएट किया गया था, वहां पे भी हम जाके पूरी तरह से हम तस्वीरें दिखा चुके हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी बाहर आएगा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह जाए, हर जगह पेट्रोलिंग करे और देखे कि कोई अपने